Hello everyone, welcome back. कैसे हैं आप लोग? Today we will discuss about further topics related chapter number 4, nature and purpose of business. Our new topic is objectives of business, or you can say business objectives. So without wasting our time, let's start. गाइस, वर्ल्ड में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसका पर्पस, उसका एम 100% पता होना चाहिए. Because the objective of business means that is the purpose for which a business is established and carried on. And proper selection of objective is always essential for the success of a business. Guys, always be remember objectives of business define the future state of affairs which the organization strives to realize. बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका मतलब यही है कि जो पर्पस है बिजनेस का वो आपको पता होना चाहिए कि आपने बिजनेस क्यों इस्टेब्लिश किया है, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं और आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं. प्रॉपर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ ऑलवेज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द business. Objectives of business are always broadly categorized into two categories. First is economic objective and second one is social objectives. Economic objectives includes like earning profit, market standing, innovation, optimum utilization of resources, improving productivity. And from my side, I suggest you two more economic objectives like managers development and second one is workers performance and attitude. So you can say that we have totally seven economic objectives. Similarly, we have social objectives are also. Social objectives includes that is quality goods and services at fair prices, avoidance of antisocial and unfair frauds practices, and third one is generation of employment, and then employee welfare, then community services. So let's see the explanation part. First is economic objective. In economic objective, guys, I already told you, as we know, business is an economic activity and therefore its purpose is to show economic results. Okay, so business being an economic activity aims to achieve some objectives. Our first objective is earning profit. So in this point, our first question is what is profit? Guys, profit means excess of income over the expenditure. Okay. And every businessman seeks to earn profit by satisfying the want of customer. Because the foremost and the prime objective of every business is to earn profit. And guys, always be remember, a business cannot survive without any earning profit. So earning profit is very very important for the growth and the survival of the business. Guys, not only for survival but it is also required for growth and expansion of the business. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं कि हर बिजनेस मैन क्या चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है. और वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाएगा? जब वो सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी की वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा. प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब है कि एक्सेस ऑफ इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम हो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो फॉरमोस्ट और जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है हर बिजनेसमैन का, वो हमेशा अर्न प्रॉफिट करने का ही होता है. और वर्ल्ड का कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता बिना अर्निंग प्रॉफिट के. और किसी भी बिजनेस के लिए सरवाइव करना ही सिर्फ इनफ नहीं होता है, उसके लिए ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट होती है, बिजनेस का एक्सपेंशन होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट economic objective is market standing. Market standing is also called a creation of customer. Guys, a business enterprise always must try to enhance its market share as it can earn more only when large number of customers are recognizing and purchasing its product. Okay, so it is very simple because business can survive for a longer period only if it's able to capture a big share in the market and has market standing or there is a creation of customer. And and it is possible only when business provides goods and services to satisfy the needs and wants of customer. Therefore creation
and satisfaction of customer, that is market, is a very very important objective of the business. अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं तो मतलब साफ है कि किसी भी बिजनेस को सरवाइव करना है लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इतना इजी नहीं है क्योंकि उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी हैं। But it is not impossible. It is possible only when business provide goods and services to satisfy the needs and wants of the customer. So that is why creation and satisfaction of customers or satisfaction of market is a very important objective of the business. Now, our third economic objective is innovation. Guys, what is innovation? It is very simple. Innovation means making a new products or adding new features of old products for making it more useful and improving methods of production and distribution, exploring new markets, or you can say that adoption of new and latest technologies, okay. And as we know, there's a lot of competition nowadays, okay. And a business can be successful only when it creates new designs, the better machines, improved techniques, new type of varieties, okay. Because no business enterprise can flourish or expand in any competitive world without innovation. So innovation is very important. सो इन सिंपल वर्ड्स आप यही बोल सकते हैं कि इनोवेशन का मतलब है कि न्यू प्रोडक्ट्स को बनाना, या जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कुछ न्यू फीचर्स ऐड करना, या न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और उनको यूज़फुल बनाना। हमारे जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है उसके अंदर भी हम कुछ न्यू इम्प्रूविंग मेथड्स को यूज़ करें, ठीक है। न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करें। और जैसा कि हमें पता है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस कंपटीशन में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको बिजनेस के अंदर न्यू डिज़ाइंस डेवलप करनी पड़ेंगी, इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, बेटर मशीन्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, टेक्नोलॉजीज़ अपडेट रखना पड़ेगा आपको, न्यू वैरायटीज़ आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। सो अगर आपको एज अ बिजनेस एंटरप्राइजेस फ्लरिश करना है कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, तो आप इनोवेशन के बिना फ्लरिश नहीं कर सकते। सो हियर इनोवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज वी नो it's a third economic objective. Now, our fourth economic objective is optimum utilization of resources. Guys, what is optimum utilization of resources? It means the best use of men, material, money, and machinery employed in business. Okay, men refers to human resource, material that is also a resource. Okay, money and machinery, these all are important resources, and the resources of business are scarce, so these must be utilized in the best possible manner so that the business can get maximum benefit from their resources. In simple words, मतलब यही है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो और किसी तरह के रिसोर्स हो, चाहे फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, ठीक है, इन सभी रिसोर्सेज का आपको प्रॉपर यूज़ करना है, एफिशिएंटली तरीके से यूज़ करना है एज पर योर नीड्स, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो उन रिसोर्सेज से और आप टाइमली अपने टारगेट्स को अचीव भी कर पाएंगे फिर। नाउ आवर नेक्स्ट economic objective is improving productivity. Guys, improving productivity is used as a measure of efficiency. Okay, as we know, every business enterprises must aim at greater productivity. Why? Because they want to ensure continuous survival and growth. So our question is how this objective can be achieved. This objective can be achieved by reducing wastage, okay, and making efficient use of machines and equipments, human resource, money. In simple words, हर बिजनेसमैन या हर बिजनेस एंटरप्राइजेस का एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं ताकि ज़्यादा सर्वाइवल हो सके, ग्रोथ हो सके कंपनी का। और ये अचीव कैसे हो सकता है? ये अचीव हो सकता है जब आप अपने रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें या कम करें, ठीक है,
और जो मशीन्स हैं आपके पास, इक्विपमेंट्स हैं, कैपिटल, फाइनेंस जिसको आप कह सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स है, और भी बहुत सारे जितने भी रिसोर्स हैं, सभी रिसोर्सेज को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा, वेस्ट भी कम होगा और आपके जो भी टारगेट्स हैं वो टाइम पे फिर अचीव होंगे। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास 5 हैं, बट फ्रॉम माय साइड आई कंसिडर 2 मोर ऑब्जेक्टिव्स, 2 मोर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज managers development and second one is workers performance and attitude. Now question is, what is a manager's development? Guys, in this various programs should be conducted by business enterprises, and the question is why? Because they want to motivate the managers and to improve their performance. In every organization, there is a very important role of managers. And as we know, each department have one head always. That is managers. Okay. So इन मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए, इनकी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है कंपनी के अंदर, ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस इनकी भी निकल के आए और पूरी टीम जो इनके साथ काम कर रही है उनकी भी परफॉर्मेंस इंट्रोड्यूस हो। बिकॉज अगर ये मोटिवेट रहेंगे तो ये परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देंगे, और इनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑब्वियसली कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और कंपनी की परफॉर्मेंस मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। एंड अ लास्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। गाइस, अब इससे पहले जो मैंने बताया कि मैनेजर्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। सिमिलरली वर्कर्स की भी परफॉर्मेंस, वर्कर्स का भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे कंपनी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली बिजनेस एंटरप्राइजेस का भी जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। किसके लिए? वर्कर्स के लिए। बिकॉज एज वी नो, एवरीबडी वॉन्ट्स, एवरीबडी नीड्स परफॉर्मेंस, ग्रोथ, सर्वाइवल। In the case of company, in the case of managers, in the case of workers, everybody wants. Now question is कि workers की performance कैसे निकाल सकते हैं आप, कैसे उनका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में बदले। तो इसके लिए जो कंपनी है उनको टाइम टू टाइम वर्कर्स को मोटिवेट करे, उनको अच्छा इंसेंटिव दे, अच्छी सैलरीज दे, अच्छी वेजेस दे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव करने में बिजनेस एंटरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करे। वर्कर्स को अप्रिशिएट किया जाए, अगर वो मिस्टेक करते भी हैं तो उनको समझाया जाए, उनको सिखाया जाए। सिमिलरली वर्कर्स को भी ये सोचना है कि ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ अपने गोल्स हैं, तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए वर्कर्स अपना 100% दें, बेस्ट एफर्ट्स लगाएं। सो चाहे बिजनेस एंटरप्राइजेस हों, चाहे वर्कर्स हों, चाहे मैनेजर्स हों, सभी को अपने बारे में भी, अपने गोल्स के बारे में भी सोचना है, उसके लिए एफर्ट्स लगाने हैं। और एज अ वर्कर, एज अ मैनेजर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी आपको ध्यान रखना है और उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मैनेजर्स को टाइम टू टाइम उनके गोल्स के अंदर उनको सपोर्ट करे, उनके वर्कर्स जो हैं अपने वर्कर्स को भी सपोर्ट किया जाए। सो यू कैन से डैट कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और मैनेजर्स का जो डेवलपमेंट है, अगर ये प्रॉपर होगा तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइजेस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो 100% टाइम टू टाइम अचीव होगा। नाउ आवर सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। हमने अभी तक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। गाइज, as we know, business is an integral part of the society and it makes use of resources of society. It earns profit by selling its product or services to members of the society. So it becomes obligatory on the part of the businessman to do something for the society. इन सिंपल लैंग्वेज समझिए इसको कि बिजनेस एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी का पार्ट है, एंड इट कैन अचीव इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ओनली बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हमें पता है कि बिजनेस
जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी के, उन रिसोर्सेज को यूज़ करता है। बिजनेस जो भी प्रोडक्शन करता है वो सोसाइटी के लिए कर रहा है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना मार्केट में। सोसाइटी के अंदर जो कस्टमर्स होते हैं फिर वो परचेज करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। सो बिजनेस को या बिजनेसमैन को सोसाइटी से इतना सब कुछ मिल रहा है, भाई प्रॉफिट मिल रहा है सबसे ज़्यादा तो ठीक है, और दूसरा रिसोर्सेज मिल रहे हैं। So here's the very important responsibility of every businessman to do something for the society. So one by one we will discuss about these, that is our social objectives. So our first social objective is supply good quality products, or you can say that quality goods and services at fair prices. Guys, as we know, the first social objective of business is to provide better quality products at reasonable price and in proper quantity on continuous basis to consumers. Or you can say that it is the duty of a businessman to produce and supply products of proper quality at reasonable price to satisfy the expectation of the customers. Okay, एज अ बिजनेस और एज अ बिजनेसमैन, ये हर बिजनेस और हर बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस करे और दूसरा सप्लाई करे प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी में बहुत अच्छे हों, जिनकी प्राइस रीजनेबल हों, और कंज्यूमर्स या कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई किया जा सके। कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके। एज वी नो कस्टमर इज़ द किंग। एज वी नो कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। वो जब भी मार्केट में कुछ खरीदने जाएगा, परचेज करने जाएगा, तो वो 100% क्वालिटी देखता है, रीजनेबल प्राइस में है कि नहीं प्रोडक्ट, वो भी ये चेक करेगा। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। एज वी नो, एज अ कस्टमर वी ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, सो कस्टमर हमेशा इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदता है, फूड प्रोडक्ट्स खरीदता है, ज्वेलरीज खरीदता है, तो इन सब में वो ट्रेडमार्क ज़रूर देखता है, क्योंकि ये ट्रेडमार्क्स ये शो करती हैं कि वो प्रोडक्ट्स क्वालिटी के अंदर बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स आप खरीदने जाते हैं तो आप उसमें आईएसआई मार्क को देखना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ये पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। एंड सेकेंड वॉज, आप फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर आप FPO ट्रेडमार्क ज़रूर देखेंगे। आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क का साइन देखते हैं, और आपने देखा होगा कि टीवीज़ पे, रेडियोज़ पे काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं कि जागो ग्राहक जागो। Guys, FPO is a trademark for food products. It shows the quality of the food products. FPO, it is a certification mark which is mandatory on all processed food products sold in India, okay, such as packaged fruit beverages or fruit jams, pickles. Its full form is Food Process Order, which is issued by the Ministry of Food Processing Industry according to the Food Safety and Standard Act of 2006. And for electrical goods, there is a existence of ISI mark, that is Indian Standard Institute. It was established to create standards for the orderly industrial growth and maintenance quality in industrial production. ISI mark is a certification mark for industry products in India since 1955. Okay. Similarly, for agriculture product, there is a egg mark. Similarly, for jewelries, there is a hallmark. Our second objective, social objective, is avoidance of unfair trade practices. Question is, what is avoidance of unfair trade practices? Guys, anti-social practices such as black marketing, okay, adulteration, misleading informations, etc. These should be avoided, okay. It is a very important responsibility because यहाँ पे बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बिल्कुल ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, किसी भी तरह की मिलावट ना करें, ठीक है, किसी भी एडवर्टीजमेंट्स के अंदर फॉल्स क्लेम ना करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें। और अगर आप ये सब करते हैं तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैटेगरी में आएगा। और बिजनेस की ग्रोथ अगर आप चाहते हैं, बिजनेस के अंदर आप प्रॉफिट चाहते हैं, तो बिजनेस को भी चाहिए कि वो इस तरह की प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व ना रहे। नाउ आवर नेक्स्ट social objective is generation of employment. Guys, as we know, nowadays employment is the biggest problem of our society. Okay. So business should provide employment to more and more people living in our country, okay? And
handicapped and disabled people should be given extra care. Okay, so ultimately you can say that कि a businessman must create employment opportunities so that different sections of the society can earn their livelihood. क्योंकि सोसाइटी बिजनेस को बिजनेसमैन को इतना कुछ दे रही है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेस एंटरप्राइजेस और बिजनेसमैन कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, अपॉर्चुनिटीज़ दे लोगों को। सोसाइटी में अलग अलग जो सेक्शंस में जो लोग रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग सेक्शंस हैं, उनके अंदर जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड, ताकि वो अपना लाइफ स्टाइल प्रॉपर तरीके से जी सकें। Okay, now our next social objective is employee welfare. Guys, first of all, you should know about the difference between employer and employee. Guys, employer means that is a person or firm or other entity which pays for or hires the services of another person. Okay, while an employee is a person who work for an organization or a company on a part-time or full-time basis and receives compensation for the services rendered in form of a salary. Okay, I hope you understand. So, as we know, employees are a valuable asset and they make significant contribution toward the success of business. There's no doubt. Okay, and another social objective of business, therefore, is to ensure welfare of employees by providing good working conditions, fair wages, and facilities such as housing, medical, and entertainments, etc., etc. Such welfare facilities helps to improve the physical and mental health of the employees, no doubt. In simple words, it is the duty of every employer to provide good working condition, good remuneration, and just treatment and impressive wages to their employees. जैसा कि हमें पता है कि एम्प्लॉयज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल एसेट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, और बिजनेस के सक्सेस के लिए, सक्सेस के अंदर एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ के बिना अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। So that is why here is a very important responsibility of any business or employers कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर करें, उनका ध्यान रखें, ठीक है, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाएं, फेयर वेजेस दें, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ दें, चाहे हाउसिंग फैसिलिटी हो और मेडिकल फैसिलिटी हो या एंटरटेनमेंट फैसिलिटी हो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। ओके, बिकॉज इन सब वेलफेयर फैसिलिटी से होगा क्या, उनका जो फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है एम्प्लॉयज़ का, वो बहुत अच्छा हो सकता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आर लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज कम्युनिटी सर्विस। गाइज, business enterprises should take all necessary steps for the development of the communities which are exist in the society. Business should contribute something to the society where it is established and operated library, dispensary, education institutions, etc., etc., which are certain contributions. Okay, and these are certain contributions which a business can make and help in the development of the community. And even for environment protection, business enterprises should take all necessary steps. Like for environment protection, they should arrange proper arrangements should be made for disposal of wastes, affluents, etc. In simple words, you can say that कि business को contribute करना चाहिए सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, इवन पूरी सोसाइटी के लिए। एज वी नो, इस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेट बिजनेस जहाँ हो रहा है वहाँ पे ये करना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लिए लाइब्रेरीज ओपन करना, डिस्पेंसरीज फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन करना, तो देयर इज़ अ कंट्रीब्यूशन। ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी में जो कम्युनिटीज़ हैं उनका 100% डेवलपमेंट होगा। और दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना जो डिस्पोजल्स हैं, ठीक है, उनके लिए, मतलब जो डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स हैं, जो वेस्ट हैं, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। सो दीज आर सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आप लोगों को ये सारी ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हुई होंगी। थैंक यू गाइस।